A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Hope all of you are well and studying at home. Dear students, in the previous lecture, we have completed our chapter of NEP out of the book that was Indian Economic Development. Dear student, today we are going to start again our another book that is macroeconomics. In today's lecture, we are going to start our 11th chapter of macroeconomics that is foreign exchange rate. Dear students, it is the chapter that is something about the foreign exchange and the determination of foreign exchange in the international market and about its history. So let's get started about the content of the chapter. Dear student, today's we are going to start the 11th chapter and the name of the chapter is foreign exchange rate. So very first question that must arise in our mind is the what is foreign exchange? So dear students, foreign exchange refers to foreign currency. Foreign exchange का मतलब क्या होता है? Foreign currency. That means the currency which is of the another country, that is a foreign exchange. The stock of foreign exchange with the country refers to the stock of all foreign currencies with the RBI at a point of time. So if we talk about the stock of foreign exchange or the reserve of foreign exchange, तो ये क्या होगा बेटा? एक certain point of time पे country के central bank in the context of India, that is RBI, के पास जितना भी foreign currency का एक stock होगा, अवेलेबिलिटी होगी, उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. लेट अस टेक सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर ऑफ अमेरिका, दिनार that is of Iraq, euro, yen of Japan, and so on. There are a lot of countries and most of the countries are having their own different currency. So all these are considered as the foreign exchange. Now the next topic is foreign exchange rate. What is a foreign exchange rate? So it refers to the rate at which domestic currency can be exchanged for foreign currency. वो rate जिस पे कि एक country की domestic currency foreign currency में क्या होती है बेटा, convert होती है, इसको बोलते हैं foreign exchange rate. See further, it is a price paid in domestic currency. अगर simple words में बोलें तो जो हम लोग डोमेस्टिक करेंसी पे करते हैं किसी एक फॉरेन करेंसी को परचेज़ करने के लिए, उसकी एक यूनिट को परचेज़ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. डियर स्टूडेंट, जस्ट सी हेयर एग्जांपल इज देयर. फॉर एग्जांपल, ₹60 आर पेड टू परचेज $1. एक $1 को परचेज करने के लिए कितने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं? ₹60 पे करने पड़ते हैं. देन इन दैट कंडीशन द एक्सचेंज रेट विल बी $1 इज इक्वल्स टू ₹60. See, the Krauther, one of the economists, have defined the foreign exchange rate. See, the rate of exchange measures the number of units of one currency which is exchanged in the foreign market for one unit of other. एक यूनिट ऑफ करेंसी के लिए जो अनदर करेंसी पे करनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, एज पर द वर्ड्स ऑफ द क्राउथर. Now see the next topic, flexible and fixed exchange rate system. If we talk about the exchange rate systems, then there are two systems available. The first one is flexible and the second one is fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system was initially prevailed in the economies. At present, there is the flexible exchange rate system. So let us discuss what is a flexible exchange rate system. It refers to the rate which is determined by the एक वो मेथड जिसमें कि जो एक्सचेंज रेट है वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस. दैट मीन्स सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ नोन एज द फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. अच्छा, इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. सी फर्दर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, एक और नेम है इसका, फ्री एक्सचेंज रेट. अब इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट एंड सप्लाई फोर्सेस. ये कैसे डिसाइड होता है? मार्केट की फ्री फोर्सेस पे डिसाइड होता है. कहाँ? इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. सी फर्दर,
the exchange rate at which demand for foreign currencies equals to its supply. वो रेट जिस पे कि फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हों उसको बोलते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. क्या बोलते हैं? पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. Now just see how the determination is there of the flexible exchange rate system. इंट्रोडक्शन देख लिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसके डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं. अब बात करते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है. तो इट इज़ टोल्ड ओवर हेयर, इसका डिटर्मिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. तो इनिशियली वी विल डिस्कस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सी स्टूडेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट छोड़ दें क्या होता है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ इन्वर्सली रिलेटेड. फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होती है वो उसकी प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड होती है. दैट मीन्स एक फॉरेन करेंसी जितनी महंगी होती जाएगी उसकी डिमांड भी उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. एंड वाइस वर्सा क्या हुआ? और उसके प्राइस जितने कम होते जाएंगे उस फॉरेन करेंसी की डिमांड भी उतनी बढ़ती चली जाएगी. दिस इज़ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. डायग्रामेटिकली अगर बात करें देन वी कैन सी इट लाइक दिस. You can see a diagram over here. In this, on the y-axis, rate of exchange, foreign exchange is given, and on the x-axis, the demand for foreign exchange is given. Just see over here, our demand curve is there, that is the DF, and in this what have been shown when the exchange rate is OR2, that is OR2, तो demand कितनी है? OM है. एंड एज सुन एज प्राइजेस डिक्रीजेस, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट हैं वो डिक्रीज होके OR1 होते हैं वैसे ही उसकी डिमांड इंक्रीज होके ON हो जाती है. सो दिस इज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नाउ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इन द सेम वे अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अगर अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखें तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज. इसकी सप्लाई और इसके रेट जो हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं. दैट मीन्स हायर द रेट ऑफ एक्सचेंज, जितना ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उतनी ही ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होगी. एंड वाइस वर्सा का मतलब जितना लो रेट होगा उतनी ही सप्लाई जो है मार्केट में कम होगी. इन द डायग्राम अगेन यू कैन सी ऑन द वाई एक्सिस द रेट ऑफ एक्सचेंज इज गिवन, बट नाउ इन दिस कंटेक्स्ट ऑन द एक्स एक्सिस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज गिवन. When the exchange rate is OR1, then supply is OM, and as soon as the exchange rate increases to OR2, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होके OR2 हो गया तो जो आपकी सप्लाई है वो इंक्रीज होके कितनी हो गई बेटा? ON हो गई. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. ये डिटर्मिनेशन कैसे होता है किसका? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का, उसको हम लोग देख रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज. सी फर्दर, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर व्हेन, ये कब होता है? व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल्स टू ईच अदर. जब फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज. See further, it is a point where the demand curve of foreign exchange intersects the supply curve of foreign exchange. अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे कि फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? इंटरसेक्ट करते हैं. वी कैन सी इन द डायग्राम. जस्ट सी ओवर हेयर, ऑन द वाई एक्सिस द रेट ऑफ एक्सचेंज इज गिवन, and on the x-axis demand or supply of foreign currency is given. With the blue color demand curve is given, and with the yellowish color that is the supply of foreign currency is given. E is the equilibrium point where the demand and supply curve intersect each other, and OR is the equilibrium rate and OQ is the equilibrium demand and supply. See further, इफ़ द रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेस टू OR1, अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज होके OR1 हो जाता है तो क्या होगा? देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? करस्पॉन्डेंटली अगर आप देखेंगे तो इट विल बी ON, एंड
जो डिमांड है वो कितनी OM है, सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो लो आ जाएगा और वो कहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो जाएगा, OR पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस डियर स्टूडेंट्स. Today we have discussed the meaning of foreign exchange. We have discussed the meaning of foreign exchange rate. We have discussed the definition of the foreign exchange rate, flexible exchange rate, demand for foreign exchange, supply for foreign exchange, and then at the last that is the equilibrium rate of exchange. This is all about today. God bless you all.